सर अतुल को एक प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट के हेडर के अंदर, तो वो अभी दिखाऊं आपको या फिर क्लास के बाद दिखाऊं वेबसाइट? क्लास के बाद। ओके, सो आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू फिनिश द लेक्चर. Okay, so in this lecture we are going to discuss about the Elementor page builder. कि आप जितने भी लोग एलिमेंटर यूज करेंगे अभी, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस क्या क्या यूज के लिए हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज उनके अंदर हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट फंक्शन. So we will discuss that. Also, we will also discuss that how many what do you say row and columns are there in a particular single screen. कि भाई एक कॉन्सेप्ट होता है हर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट बिल्डिंग प्रोसेस में कि दे आर रो एंड कॉलम्स. ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा रो एंड कॉलम्स मे बी इन समवेयर एल्स, बट यहाँ पर उसका कैसे यूज है वी विल आल्सो सी दैट. So in order to do that, first let me present my screen with you guys. Yes, so I hope my screen is visible to all of you. Just say yes or no quickly. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So on my screen, you can see that I have logged into one of my, WP admin, that is WordPress dashboard. And if I show you the website, so this is how the website looks like, named as greenmasters.in, right? That's how the website looks like. So this is the website. You can see this is an online webinar or online event website. That's how it looks like. And well, there are various tabs called home, agenda, training, speaker, delegates, contact, right? So there are various options available here. There are various options available in this particular website. So we are going to see that how these options are created or how these options are made. But before that, we will understand that what is the functionality, what is the exact functionality of Elementor. So what I'm going to do here, I am going to create a demo page. So first I'll go to pages and I'll create add new, and I'll just create a page named as demo, and then I'll be publishing it. Yes, this is done. Then I'll click on edit with Elementor, so that Elementor page builder will be applicable or will be applied on this particular page. So once that is done, you will see a screen like this. अगर आपका header set है already, जैसे मेरे already header set है इसमें, तो you will see header and the footer, and you will see the body part as blank. ठीक है, आपको ये कुछ options दिखेंगे, that is plus, folder and that is extra theme का A. Clear है, ये वाले options आपको दिखेंगे. Now let's talk one by one and please pay attention. बहुत easy है, बस एक बार समझ लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि what I'm going to talk. If I'm going to add a new element, let's suppose if I take an example of let's say training. So I'll see one or two things. For example, let's say I want to make this section, this particular section having one image on the left side, some text on the right side and the button on the right side as well. ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये समझो कि जो पूरी स्क्रीन है, the entire screen is divided into 12 columns. The entire screen
is divided into 12 columns. By default ये होता है, ठीक है. By default जो entire screen है, entire screen, इसका मतलब जो width है screen की वो 12 columns में divided होती है screen width, ठीक है. 12 columns में divided होती है. मैक्सिमम आप 12 कॉलम्स बना सकते हो. अब व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस प्लस बटन ना, तो इट विल आस्क यू, ये देखो, जब जैसे ही आपने प्लस बटन पे क्लिक किया तो इट विल आस्क कि आपको किस तरह की रो चाहिए. रो का मतलब कि आपको क्या उसमें 2 कॉलम्स चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, या फिर 2 चाहिए लेकिन एक 20% का चाहिए, एक 80% का चाहिए, या फर्स्ट 80% का चाहिए, या फिर आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, या किस तरह का आपको कॉलम चाहिए. तो इफ वी वांट टू सी हियर, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें 2 इक्वल साइज के कॉलम चाहिए इस पर्टिकुलर रो में, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, आई विल सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. नाउ यू कैन सी देयर आर 2 कॉलम्स इन इट. ये एक सिंगल रो है और इसके अंदर फर्स्ट कॉलम ये रहा जहां पे ये वाला प्लस का मार्क है, एंड द सेकंड कॉलम इज दिस वन. मतलब अब मैं 2 कॉलम्स में इस रो को मैंने डिवाइड कर दिया है. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई वांट टू यूज एन इमेज. On the left hand side I want to use an image. तो अब मैं यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करूंगा. When I click on this, I will search on the left hand side say image. There are multiple options image के, image box, image carousel, basic gallery, WordPress image, product image, featured image, right? So first is image. तो मैं इसको, मुझे simply क्या करना है, इसको drag and drop करना है. That's it. जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. नाउ इट इज आस्किंग मी टू सेलेक्ट एन इमेज. तो अगर मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड से चूज इमेज, एंड देन आई विल गो टू मीडिया लाइब्रेरी. अगर मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं तो मैं उनको यूज कर सकता हूं, अगर नहीं है सो आई कैन अपलोड माय न्यू इमेजेस, राइट. सो लेट्स सपोज आई वांट टू यूज this image only which we saw here, right? So I'll click on this. Yes, the image is selected. Then I'll say insert media. So as soon as I'll do that, this image will show up here. ये यहाँ पर दिखेगी सारी इमेज, ठीक है. तो फर्स्ट हमने इमेज डाल दी लेफ्ट साइड में. राइट साइड में हमें टेक्स्ट डालना है. राइट साइड में हमें टेक्स्ट और एक बटन डालना है. सो लेट्स से राइट हैंड साइड के प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, एंड देन आई विल सी द ऑप्शंस कॉल्ड हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, राइट. बस 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर. तो व्हाट आई विल डू, एक तो मैं हेडिंग लूंगा जिसमें ये लिखा होगा साफ साफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ग्रीन्स एंड वर्कशॉप. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हेडिंग आ गई, ठीक है. सेकेंड इज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है. टेक्स्ट लिखने के लिए हमेशा आपको टेक्स्ट एडिटर ही लेना है. हेडिंग जब भी आपको लिखनी है तो आपको हेडिंग वाला विजिट यूज करना है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सम टेक्स्ट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, देन यू हैव टू टेक टेक्स्ट एडिटर. तो टेक्स्ट एडिटर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे आना चाहिए. इसके देखो नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया. तो एक के अंदर 1 by 1 ऊपर से लेकर नीचे तक कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं. अगर हमने फर्स्ट, तो हमने क्या किया कि जो पूरी स्क्रीन थी, जो एक रो थी, उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया, ठीक है. लेकिन जो 2 कॉलम्स हैं उनमें वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, और उसके लिए मुझे कोई अलग से सेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. थर्ड थिंग क्या है यहाँ पे, बटन. तो बटन के लिए अगेन मैं बटन देखता हूँ, ये रहा बटन. तो बटन को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये यहाँ पे लिया. दैट्स इट, ठीक है. अब एक बार इतना अपन करते हैं. तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ एक हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग में ये वाली डाल देता हूँ. I'll just copy it and I'll enter the text here. Introduction to microgreens and workshop. Then ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे वाले को. Let's copy this text. This is about the timing or maybe about the date. ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये देखो यहाँ पे आ गया. एंड द बटन, ठीक है. अब ये तो चीज हो गई कि मैंने एज इट इज सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर दी हैं, ठीक है. नाउ आई वांट टू ऐड, नाउ आई वांट टू चेंज द कलर. तो लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट वाला हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ग्रीन्स, इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू स्टाइल्स. आई आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आई विल गो टू स्टाइल्स,
ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, कलर चेंज करना है तो वो स्टाइल के अंडर ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। अगर कुछ चीजें स्टैंडर्ड है यहाँ पे, अगर कुछ चीजें कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, सो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन अंडर द स्टाइल टैब, ठीक है। टेक्स्ट कलर, यू विल क्लिक ऑन दिस, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यू कैन चूज एनी कलर, लाइक ये देखो, ये पूरा पूरा आपके पास है, जहां जहां भी आप ले जाओगे द कलर विल चेंज अकॉर्डिंगली। Want to change the shade, you can do that, right? So let's suppose we choose blue, okay, let's suppose we choose blue, so we have selected it, right? Now the second thing, यहाँ पर इसका जो text color है ये black होना चाहिए, it should be black, for example. So what I'll do is, again I'll click on this and then I'll go to styles में I'll see text color I'll select black, right? Now if I want to increase the font, ये तो मैंने आपको बताया, this is about the color, how to change the text color. Now if I want to increase the font, so let's see where the option is. I'll go to content. So there is no option called increase font or something like this, right? So what you will do is, you will again go to styles. Can you see this typography? After that you can see a pencil mark, just click on that and you can see the size, and as soon as you will increase the size, the text size will get increased. See, 16, 17, 18, 19. So जैसे word में आप करते हो, ये वैसा ही कुछ है. So let's suppose we want to keep it as 18, ठीक है. So this is done. Now यहाँ पे कुछ मेरे को गैप ज्यादा लग रहा है, तो I'll click on the pencil mark and I'll see कि कोई extra enter तो नहीं आ गया. Yes, so extra enter was there, so I have removed it. So I have added the heading, I have added the text. Now I want to show the button. So by default the button is like this. I'll click on the pencil mark of the button, then I can see the type of the button. There are options like default, info, and as soon as you will change the type of the button, the color will automatically get changed. Success, warning, or maybe danger, right? You can also rename the text. So let's suppose submit now, you can write it, or maybe inquire now, you can also write that, correct? Now if you want to give a particular link, let's suppose कि इस link पे या इस जैसे let's suppose register now, तो अब इस पे क्लिक करने पे होता क्या है, there is a pop-up over here. ये pop-up वाली फंक्शनैलिटी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे कैसे लगाते हैं. So what you will do कि हमें ये करना है कि इस पे क्लिक करने पर कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो खुलना चाहिए, that should get open. So what I'll do कि उस लिंक पे, उस बटन पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा. यहाँ पर जो बटन है इसके लिंक पर what I'll do, I'll just give the link of that particular page जहां पर मुझे ले जाना है. If you want to change the alignment, center, right, maybe left, ठीक है, वो कर सकते हो आप. If you want to change the button size, medium, large, maybe extra large, as per your choice, ठीक है. Let's suppose हम रखते हैं small ही रखते हैं अभी. If you want to add some icon, तो आप आइकन पे क्लिक कर सकते हो. देयर आर सम प्री डिफाइंड आइकन लाइब्रेरी इन द एलिमेंटर. सो लेट्स सपोज यहाँ पर आपको कोई अच्छा लग रहा है आइकन, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आइकन हमें लेना है. सो आई विल इंसर्ट दैट. यू कैन सी द आइकन इज इंसर्टेड. सो आप विदाउट टेक्स्ट भी आइकन को रख सकते हो, यू कैन सी दैट, ठीक है. और साथ में तो रख ही सकते हो, ठीक है, साथ में तो आप रख ही सकते हो. नाउ यू कैन सी द ऑप्शन बिफोर और आफ्टर कि कहां पर आपको चाहिए, टेक्स्ट के पहले चाहिए या टेक्स्ट के बाद में चाहिए. नाउ यू कैन सी द आइकन स्पेसिंग, ये देखो कितना दूर चाहिए, कितना पास चाहिए, ठीक है. तो यू कैन डिसाइड दैट. ये चीजें हो गई. नाउ आई विल क्लिक ऑन द अपडेट बटन. ये सारी होने के बाद अब मुझे सेव करना है, तो इफ आई वांट टू सेव माय वर्क देन आई हैव टू क्लिक द अपडेट बटन. नाउ इफ आई हैव टू सी द पेज, सो क्योंकि मैंने उसको अभी तक वो नेविगेशन बार में नहीं डाला है, so I have to visit that page by its direct URL, ठीक है, greenmasters.in/demo. ये देखो, the page is ready, I mean the section is ready. I'll click on the inquire now. So as soon as I'll click on the inquire now, I will go to the contact us page, right?
सो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो डू। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने अभी तक कहीं भी कोडिंग यूज नहीं की है, मैंने कहीं भी कोई ऐसा टेक्निकल टर्म यूज नहीं की है। आई जस्ट व्हाट आई डिड, आई जस्ट ड्रैग्ड एंड ड्रॉप सम एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक दिस होल सेक्शन। ठीक है, अब जल्दी से पहले ये बताओ कि कितने लोगों को इसमें कोई भी डाउट है? हाउ मेनी पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस, जो मैंने अभी बताया? फटाफट से बताओ। आई नो इट इज सैटरडे, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी तो रखना पड़ेगा। राघवी, निधि, लक्ष्य, जतिन, अतुल, अमन। सर मुझे वो समझ में नहीं आया सर, आपने कॉन्टेक्ट अस का पेज लगाया ना उस बटन पे, वो समझाइए दोबारा। ठीक है, और बाकी लोग? हेलो हेलो सर। सर एक्चुअली मतलब कि वो हमारा जो वेबसाइट का वो हेडर क्लास पोर्शन के है ना। बाद, क्लास के बाद। ओके सर, ओके। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आई अप्रिशिएट कि आप लोग सैटरडे को ज्वाइन कर लिया, लेकिन यार अगर आप बोलोगे ही नहीं और मुझे बताओगे ही नहीं कि क्या हो रहा है और कैसे समझ में आया नहीं आ रहा, तो फिर क्या मतलब है सैटरडे को भी आने का? हाँ यश बताओ। सो वो मेरी साइट नहीं खुल रही। ठीक है, वो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग? जो लोग नहीं बोलेंगे सो आई कंसिडर देम एज एब्सेंट। ठीक है ना? तो फिर मुझे यही लगेगा कि सिर्फ मेरी बात रखने के लिए तुम लोग सैटरडे को बस आ गए कि हाँ ठीक है सर आ जाते हैं, बट यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। चैट बॉक्स में तो बोलो यस और नो, कि भाई डाउट है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। No, sir, no doubt. वो गुड मॉर्निंग। Good morning. उठ गया आखिरकार। चलो मेरी बातों कुछ तो सर। यार एक कप कॉफी वॉफी बनवाओ मम्मी से, सर आज दीदी बहुत से। सारे सेशंस है कंटिन्यूस। अच्छा, इसीलिए पहले से आलस आ रहा है नहीं? अरे माइक इज नॉट चल रहा। ओके, माइक नहीं चल रहा आपका। चलो ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग हो गया सबकी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एलिमेंटोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक नया सेक्शन ऐड करना है। ठीक है, अगर नया सेक्शन ऐड करना है सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। ठीक है, अगेन ये मेरे से वही पूछेगा। सबसे पहले प्लस बटन पे क्लिक करूंगा दैट हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। तो लेट्स सपोज आई वांट 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स। अच्छा, अगर मान लो एग्जिस्टिंग वाले में जैसे मैंने ये बनाया, अब मुझे बनाने के बाद ध्यान आया, बनाने के बाद आई वुड रिक्वायर कि यार आई वांट 1 एक्स्ट्रा कॉलम, आई वुड रिक्वायर 1 एक्स्ट्रा कॉलम। सो व्हाट आई विल डू, मुझे कुछ नहीं करना, इसको वापस डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट क्लिक ऑन दी, आई जस्ट गो ऑन द कॉलम, आई कैन सी दिस आइकन। इस आइकन पे जाके राइट क्लिक करना है एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट। दैट्स इट। मतलब मुझे एक कॉलम अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है तो मुझे सिर्फ किसी भी कॉलम को डुप्लीकेट करना है और मेरे को 2 कॉलम से 3 कॉलम हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू एडजस्ट द साइज कि यार जो फर्स्ट कॉलम है ये बड़ा होना चाहिए। सो देखो ये दोनों का जो बॉर्डर है यहाँ पर, ये देखो, इसको क्लिक करो एंड यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज दिस। कितना इजी है देखो, ऐसा लग रहा है वीडियो गेम खेल रहे हैं, इतना इजी है। एंड यू कैन सी दी परसेंटेज कि 33.33% आना चाहिए या इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो इक्वली डिवाइड करेगा, लेकिन अगर आपको मैनुअली अलग करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर इसको भी ऐसा कुछ करना है तो आई कैन डू दैट, ये लो। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा एलिमेंटोर इसीलिए मैंने आपको बताया है, इसीलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि सबसे इजी है। ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरे टूल नहीं है, लेकिन एलिमेंटोर यूजर फ्रेंडली है फॉर बिगिनर्स। दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब लेट्स सी जल्दी से इसके बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ये आपको रो वाला कॉन्सेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड और मैं इसको इमीडिएटली यूट्यूब पर डाल दूंगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नाउ लेट्स सी कि अलग अलग जो ऑप्शंस है यहाँ पर वो क्या क्या है। तो एक ही करके एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, दो दो के कॉलम्स में हम चलते हैं। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट आपने देखा हेडिंग, इनर सेक्शन को भूल जाओ, इनर सेक्शन हमारे काम का ज्यादा नहीं आता। तो फर्स्ट इज हेडिंग, हेडिंग आपने देख लिया, इमेज यू हैव सीन, टेक्स्ट एडिटर यू हैव सीन। ठीक है, नाउ वीडियो, लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप एंड लेट्स सी कि क्या होता है।
नाउ इट सेज YouTube वीडियो अगर आपको एम्बेड करना है, YouTube वीडियो या कोई भी और वीडियो आपको एम्बेड करना है तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन. सो लेट्स सपोज इफ आई गो ऑन YouTube और अगर मेरा कोई भी एक वीडियो है जो मुझे एम्बेड करना है इस पर्टिकुलर पेज में, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे कभी वीडियो अपलोड नहीं करते, उससे क्या होता है वेबसाइट बहुत भारी हो जाती है. सो लेट्स सपोज आई गो टू माय चैनल, ठीक है, टेक वन ऑफ द लिंक, ठीक है, कोई भी एक लिंक, वेबसाइट का लिंक ले लेता, URL ले लेता हूँ. सो लेट्स सी, जैसे ये वाली जो वीडियोस है, तो ये इसका एक लिंक लिया, कॉपी किया एंड आई जस्ट कम बैक एंड ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इसके अंदर मैंने ये सारा पेस्ट कर दिया, ठीक है. सो एज सून एज आई पेस्ट इट, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया. अब यहाँ पर उसके ऊपर आप देख सकते हो सोर्स. तो वेदर यू वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम यूट्यूब, वीमियो भी एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, डेली मोशन, सेल्फ होस्टेड, क्या डालना चाहते हो. सेल्फ होस्टेड मतलब यहाँ पे ही डाला हुआ है आपने, डायरेक्टली वेबसाइट में ही अपलोड की हुई है वीडियो, ठीक है. तो अगर वैसा कुछ है तो यू कैन डू दैट. यूट्यूब का है तो यूट्यूब का मैंने बता दिया, लिंक डाल सकते हो. वीमियो का है, वीमियो डाल सकते हो. डेली मोशंस में से कोई डालना है तो वो डाल सकते हो, ठीक है. उसके बाद इसमें आप यू कैन डिसाइड कि कौन से टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए. यू डोंट वांट टू शो फ्रॉम द बिगिनिंग, यू वांट टू शो फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो आप कर सकते हो. एंड टाइम यू कैन आल्सो शो दैट. यू वांट टू ऑटो प्ले इट, कि जैसे ही पेज खुले ऑटो प्ले हो जाए, और यू कैन आल्सो डू दैट. प्ले ऑन मोबाइल, म्यूट, लूप. लूप मतलब लूप में चलता ही रहे, रुके ही ना, ठीक है. प्लेयर कंट्रोल, क्या यहाँ पे प्लेयर के पास कंट्रोल होने चाहिए स्टार्ट एंड स्टॉप के, राइट. So these are something which options are there. So this is something which you can use in order to add a video, ठीक है. ये वीडियो है और जिससे देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हर ऑप्शन, हर इंडिविजुअल विजिट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. व्हेन यू विल नीड इट, अगर आपको जब नीड पड़ेगी तब आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हाँ यार इतने सारे ऑप्शंस हैं, आई हैव टू नीड इट, ठीक है. बटन वी हैव सीन इट. डिवाइडर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये दो एलिमेंट्स हैं, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज टेक्स्ट. अब मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए, आई वांट टू क्रिएट अ डिवाइडर, और मे बी देखो दो चीजें हैं, डिवाइडर और स्पेसर. सो फर्स्ट वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप द डिवाइडर, ये देखो. तो डिवाइडर इज नथिंग बट अ लाइन, ये एक लाइन है जो आ जाती है, और फिर इसमें आप देखो डबल, सॉलिड, ठीक है, डॉटेड. तो दीज आर दी ऑप्शन फॉर द डिवाइडर. तो दिखेगा ये कि भाई डिवाइडर है. विड्थ आप चूज कर सकते हो, ठीक है. स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हो, इसकी जो थिकनेस है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है. तो ये सारे ऑप्शंस है. देन स्पेसर इज स्पेस क्रिएट करना है. अब ये दोनों के बीच में देखो स्पेस आ गया, और यहाँ पर ये दे रहा है कि कितना स्पेस है. 50 पिक्सल कम करना है तो कम कर दो, ज्यादा करना है ज्यादा कर दो, ठीक है. तो ये चीज आप कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो यू कैन डू. नाउ लेट्स सी. अब देखो यहाँ पर एक प्रो ऑप्शन है, ये तो थे बेसिक, यहाँ है प्रो. प्रो ऑप्शंस आर बाय डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल इन द फ्री वर्जन ऑफ एलिमेंटर. फ्री वर्जन में प्रो एलिमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होते. इसके लिए आपको एलिमेंटर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द एलिमेंटर सब्सक्रिप्शन, ठीक है. उसकी प्राइस देख लेते हैं एलिमेंटर सब्सक्रिप्शन की, व्हाट इज द प्राइस. सो यस, सो गेट एलिमेंटर प्रो. बहुत रेयरली होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एलिमेंटर प्रो यूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो फ्री वाले से हो जाता है, ठीक है. सो यू कैन सी, अगर आपको एक वेबसाइट पे यूज करना है फॉर 1 ईयर दैट इज $49, ठीक है. $99 पर ईयर फॉर 3 वेबसाइट, $199 पर ईयर फॉर 1000 वेबसाइट्स, ठीक है. ये यहाँ पर है. तो मोस्टली देखो फ्री वाले वर्जन ही हम यूज करते हैं. इसमें 40 बेसिक विजिट मिलते हैं और 30 टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं. मतलब ये जो विजिट का मतलब ये जो ऑप्शन लेफ्ट में मिले ना आपको, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट, सो दीज आर विजिट्स. तो 40 विजिट मिलते हैं फ्री वर्जन में, ठीक है. अब इसके नीचे अगर देखूंगा तो प्रो वाले आई कैन नॉट यूज, तो मैं उसको हाइड कर देता हूँ. अब उसके बाद देखो अगेन आई कैन सी सम ऑप्शंस. नाउ लेट्स सी कि ये इमेज बॉक्स क्या करता है. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखो इमेज बॉक्स इज समथिंग लाइक दिस. इसका यूज क्या है. इसका यूज लेट्स सपोज कभी आपको अपना कस्टमर टेस्टिमोनियल डालना हो, या फिर इफ यू वांट टू शो सम इमेज एंड वन हेडिंग एंड वन सम टेक्स्ट इन इट. जैसे लेट्स सपोज I have done this in the speaker section. I have done this for speaker section.
ये देखो यहाँ पर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट थी यहाँ की, मुझे एक इमेज चाहिए, इमेज के नीचे एक हेडिंग चाहिए और उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो व्हाट आई डिड, मैंने जस्ट इस विजेट को यूज किया, दैट इज कॉल्ड इमेज बॉक्स, ठीक है, और उससे मेरा काम हो गया। ठीक है, नाउ अगेन वही चीजें हैं, यहाँ पे टाइटल हेडिंग डाल दो, इमेज की साइज डाल दो और डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, बहुत बेसिक है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से टाइम पे आप कौन से यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स जस्ट डिलीट दिस। नाउ कम ऑन टू दैट आइकन बॉक्स। तो वो तो था इमेज बॉक्स, ये है आइकन बॉक्स। यू कैन सर्च दी आइकन्स। सो लेट्स सपोज दिस आइकन, तो यहाँ पर आप आइकन्स दे सकते हो एंड अगेन वही हेडिंग और टेक्स्ट। ठीक है, यू कैन डू दैट। लेट्स जस्ट डिलीट दैट। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, आई नो, लेकिन ये क्या इतना बड़ा नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या है। एक बार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस। स्टार रेटिंग, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन ऐड द स्टार रेटिंग। कहीं पे भी आपको स्टार रेटिंग डालना है, लेट्स सपोज कस्टमर टेस्टिमोनियल आपको डालना है वेबसाइट पे एंड यू वांट टू शो द स्टार रेटिंग कि भाई हमारी जो सर्विसेज है उनको हमारे कस्टमर्स ने 5 स्टार रेटिंग दी है, 4 स्टार रेटिंग दी है, व्हाट दे हैव गिवन। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। So rating scale, either you can put 0 to 5 or 0 to 10. How many ratings you want to give yourself? Let's suppose 10. ये देखो full हो जाएगा। इसके अंदर you can change something like font, इसमें आप थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो। Title you can give, let's suppose demo title। ठीक है, तो let's suppose ये हमें दिया for flexibility। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमें लेट्स सपोज ये 10 स्टार्स मिले, तो यू कैन शो दैट। ठीक है, टेक्स्ट में जाके अगेन वही कलर चेंज कर सकते हो, स्टार्स का साइज बड़ा कर सकते हो, ये देखो यू कैन डू दैट। ठीक, सर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो कैसे करना है यहाँ पे? फॉन्ट का साइज के लिए देखो यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी दिख रहा है। ओके, टाइपोग्राफी के सामने जो पेंसिल का मार्क है उसको क्लिक करो और यहाँ पे जो साइज है, ये जो स्केल है, इसको छोटा बड़ा करो। नो सर, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल, टॉकिंग अबाउट फैमिली बात कर रहा है। फैमिली, तो ये ऊपर वाला देखो, अभी बाय डिफॉल्ट थीम का जो है वही सिलेक्टेड है। लेट्स सपोज आपको कोई और सेलेक्ट करना है, तो जैसे एमएस वर्ड में यूज करते हो एरियल या फिर वेदाना या समथिंग लाइक दिस, कोई सर्च करना है, लेट्स सपोज रोबोटो सर्च करना है, ये रहा रोबोटो, ये रहा। आप यू कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली एज वेल। टाइम्स न्यू रोमन डालना है, टाइम्स न्यू रोमन डाल दो। ठीक है, सो यू कैन चेंज दैट। यू कैन ऑल्सो चेंज द वेट ऑफ द फॉन्ट, कि आपको थोड़ा हैवी बनाना है, बोल्ड बनाना है, तो यू कैन डू दैट। ये देखो सिंपल बोल्ड रखना है या उसमें भी वेरिएशन देना है। ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस करना है, डाउन केस करना है, लोअर केस कैपिटलाइज क्या करना है, यू कैन डू दैट। स्टाइल इटैलिक करना है, ठीक है, या फिर ऑब्लिक करना है, या फिर नॉर्मल रखना है। डेकोरेशन अंडरलाइन करना है या फिर ओवरलाइन करना है, या फिर लेट्स सपोज लाइन थ्रू करना है, क्या करना है आपको, नन, यू कैन डू दैट। लाइन हाइट, लाइन की हाइट क्या रखोगे, मतलब ऊपर नीचे के टेक्स्ट की लाइन की हाइट क्या रखोगे। लेटर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू इंक्रीज लेटर स्पेसिंग, यू कैन डू दैट। ठीक है, सो ये बहुत इजी ऑप्शन है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने एमएस वर्ड नहीं चलाया है या एमएस ऑफिस यूज नहीं किया है, तो शायद उसको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, वरना अगर एक दिन भी एमएस वर्ड यूज किया है, उसके फीचर्स को समझा है, यू विल फेस नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपको एक दिन भी एमएस वर्ड यूज किया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी 5 स्टार इमेज कराउजल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से वो लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड स्लाइडर या फिर कराउजल के मतलब, अगर मुझे ये जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कहाँ यूज किया हमने, इसके अंदर लेट्स सी कि हमने कहाँ यूज किया है। सो हम यहाँ इसको यूज करते हैं लोगो या फिर कोई एक स्लाइड शो दिखाने के लिए, यहाँ तो यूज नहीं किया है। तो I'll show one more website, so let's see कि इसमें यूज किया होगा। तो let's see if I go to exhibitor section, ये देखो अभी ये जो दिख रहा है ना, this is carousel, ये जो लेफ्ट एंड राइट में जा रहा है, ये carousel जो दिख रहा है, ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, ये इसी से बना हुआ है। So what I'll do, I'll just drag and drop this. What I'll do, I'll just drag and drop this,
जैसे ही मैंने किया, you can see on the left side it is asking for image selection. So right now by default no image is selected. I'll just click on it और let's suppose मुझे 5 इमेज डालनी है, तो जो भी मुझे सेलेक्ट करनी है, जो मतलब मेरे काम की है, तो लेट्स सपोज मैंने 5 इमेज सेलेक्ट की, ये आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों पे टिक मार्क आ गया. क्रिएट अ न्यू गैलरी. आई हैव इंसर्टेड 5. इंसर्ट गैलरी. नाउ यू कैन सी अभी ऑटोमेटिकली चलेंगे. यू कैन सी दी पेजिनेशन. अब यहाँ पर आपको चाहिए कि यार मुझे एक बार में कितने दिखा रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सपोज पहले इमेज की साइज देखते हैं. अभी बाय डिफॉल्ट 150 into 150 है. इफ यू वांट टू इंक्रीज इट यू कैन इंक्रीज इट, ठीक है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. इफ यू वांट टू कीप फुल साइज, जो बाय डिफॉल्ट साइज है, यू कैन डू दैट. स्लाइड टू शो, एक बार में एक स्क्रीन पे कितने दिखा रहे हो. राइट नाउ 3 स्लाइड्स आर शोइंग. आई वांट टू शो 5, तो ये हो जाएगा. आई वांट टू शो 3, आई वांट टू शो 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है. सो यू कैन डिसाइड दैट. स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कि स्क्रॉल जब करते हैं स्लाइड्स को तो उसमें कितनी आनी चाहिए, क्या एक आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, एक बार में कितनी आनी चाहिए. यू कैन डू दैट. इमेज स्ट्रेच, क्या इमेज को स्ट्रेच करना जरूरी है. एरोज चाहिए आपको नीचे, जैसे यहाँ पर तो नीचे है, तो सिर्फ आपको एरो चाहिए. तो देखो लेफ्ट और राइट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एरोज आ चुके हैं. ये देखो, यहाँ एरोज पे क्लिक किया एंड यू कैन मैनुअली स्क्रॉल दिस. इफ यू वांट टू पुट अ लिंक ऑन इट, कि यार मुझे किसी पे लिंक डालना है, किसी यूआरएल पे, किसी कहीं पे, तो यू कैन डू दैट. कैप्शन डालना है, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर कि इमेज के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है. सो इफ यू वांट टू राइट दिस, तो यू कैन सेलेक्ट लाइक कैप्शन, ठीक है. और कैप्शन में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, लाइक डेमो 1. इसमें आपको लिखना है डेमो लेट्स सपोज 2, ठीक है. इंसर्ट गैलरी. ये देखो नीचे आ गया डेमो 1 डेमो 2. सो यू कैन आल्सो डू दैट. तो आपको देखो एलिमेंटर सिर्फ क्या करेगा, एलिमेंटर विल प्रोवाइड यू दी ऑप्शंस टू डू दैट. लेकिन दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है. एलिमेंटर आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. एलिमेंटर ही बोलेगा कि यार हाँ यही ऑप्शन, ये चीजें करनी है, तो मेरे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है. बट यू नीड टू डिसाइड दैट हाउ यू विल डू इट, और व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट. क्या आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है. I'll just delete this. Next is basic gallery. So if you want to make a gallery page, so you can do that. Let's suppose again 5 images. तो मैं वही 5 images use कर लेता हूँ because those are of same sizes. Insert gallery. ये आपको सिंपली रखना है कि यार मुझे ऐसे 5 images शो करानी गैलरी पेज पे. You can do that. ऑर्डर बाय रैंडम डालना है कि रैंडमली आनी चाहिए, वो आप कर सकते हो, ठीक है. मीडिया फाइल पे लिंक देना है, 4 दिखानी है एक बार में, 5 दिखानी है. थंबनेल क्या है, अगेन वही स्टाइल में स्पेस करना है, कैप्शन देना है. सो दीज आर दी मतलब बेसिक. अब तक तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा कि कौन कौन से ऑप्शन है. सब में कॉमन है, ठीक है. देन द काउंटर इज देयर. अगर आप काउंटर, जैसे लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था ये वाली चीज, तो काउंटर दिखाना है, तो यू कैन शो कि लाइक आपने इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सर्व कर दिए, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर दिया, राइट. सो दीज आर द थिंग व्हिच यू कैन डू राइट बाय दिस ऑप्शन. देन देयर इज अनदर टैब कॉल्ड प्रोग्रेस बार. सो यू कैन से लाइक यार हमारे जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ये बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोवेशन की वेबसाइट का. हालांकि वो वर्डप्रेस में नहीं है, बट यू कैन सी दी यस ये वाले प्रोग्रेस. ये चारों जो दिख रहे हैं ना आपको, search engine optimization, social media marketing, online reputation management, and Google AdWords. So this is called search bar. So kind of you rate yourself or you provide the progress of that particular thing. यार हमारा अभी क्या progress है या कुछ भी ऐसा, so you can do that, ठीक है. I'll just delete it. Then you have testimonials. They are not ज़्यादा नहीं है, खत्म करते हैं फटाफट. Testimonials. तो यू कैन सी लाइक कि यहाँ पर टेस्टिमोनियल लिख दिया, क्लाइंट की फोटो डाल दी, क्लाइंट का नाम डाल दिया, क्लाइंट की डेजिग्नेशन डाल दी कि यार एटलीस्ट हमें क्योंकि ये बहुत जरूरी है डालना. अगर लेट्स सपोज इफ आई गो ऑन दिस साइट, सो व्हाट पीपल आर सेइंग, ये क्या होता है, अगर आप सोशल ट्रस्ट जनरेट करना, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सोशल ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट, देन यू प्रोवाइड some kind of testimonial, some kind of what you say feedback from your existing customers. अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, देन यू हैव टू पुट एटलीस्ट फ्यू टेस्टिमोनियल्स ऑन योर वेबसाइट.
उसके लिए दिस इज परफेक्ट, राइट? सो यू कैन डू दैट by this option. I just delete that. Next is tabs. If you want to show some data in tab, like tab 1, when you click on tab 2, the different data is shown. So let's suppose in this demo 1, and under the tab 2, I want to show demo 2. So this is something which you can use in order to show various text, or let's suppose lots of text, but without increasing the length of the page. I mean, अगर मुझे पेज की लेंथ इंक्रीज नहीं करनी है तो यू कैन डू दिस ऑप्शन कि साइड बाय साइड जिससे से क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे वो ऑप्शन दिखता जाएगा, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. लेट मी डिलीट दैट. ये वीडियो जब पूरी देखोगे बाद में भी तो एक एक ऑप्शन आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या था उसके अंदर, ठीक है? लेट्स सी दिस ऑप्शन. ये काइंड ऑफ टॉगल है. टॉगल इन द सेंस कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा. सो दीज आर यूज्ड फॉर लेट्स सपोज FAQ कि अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन डालना है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BBA, ठीक है? नाउ आई वांट टू राइट द आंसर. BBA स्टैंड्स फॉर, बताओ जी क्या होता है BBA? Bachelor of Business Administration. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट है? ठीक है. तो इसी तरह से यू कैन राइट एनीथिंग. व्हाट इज, हाँ जी, इसके अंदर भी इस तरह के ऑप्शन देने हो तो भी दे सकते हैं. इस तरह के जैसे जैसे आपने इसमें दिया है, इसके अंदर एक और ऐसा ही देने का. मतलब इसके अंदर एक और ऐड करना है क्वेश्चन. हाँ, तो यू कैन क्लिक ऑन द ऐड आइटम. इसमें लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं पेजेस की. सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. मैं दिखाता हूँ देखो कैसे करते हैं. फुल फॉर्म वैसे मैम, लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? नाउ इफ आई वांट टू गिव सम काइंड ऑफ लिंक और सम काइंड ऑफ URL, सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लेट्स सपोज इस पे देना है कि अगर कोई क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करे, जैसे लेट्स सपोज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई क्लिक करे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट इट and I'll click this option called edit link. अब यहां पर let's suppose मुझे इसका URL देना है, paste, enter. ये देखो, अब when someone will click on this particular thing, he will get redirected to this page जिसका भी आपने लिंक दिया है. समझ में आया? ये तो आई थिंक ये इसको क्या बोलते हैं वर्ड में, हाइपरलिंक. सर हाइपरलिंक ही बोलते हैं, है ना? हाइपरलिंक ही बोलते हैं ना. सेम है कॉन्सेप्ट. है मैंने कहा ना, अगर या तो तुमने वर्ड यूज नहीं किया है तो इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर वर्ड यूज किया है तो इसमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी तुम्हें, ये फॉर श्योर, क्योंकि सारे ऑप्शन वैसे ही हैं. कोई भी कोडिंग तो है ही नहीं, बिल्कुल कोडिंग नहीं है इसमें, ठीक है? इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टॉगल. टॉगल के अंदर भी ये देखो वही सेम ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वैसा दिख रहा है कि यहाँ पर बॉक्स नहीं है, बॉक्स की शेप में नहीं है, ठीक है? सो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सेम है. देन विल गो टू सोशल मीडिया आइकन्स. यस, सो इफ यू वांट टू गिव सोशल मीडिया आइकन ऑन योर फुटर, ऑन योर हेडर, तो आप दे सकते हो, उसके अंदर अपने लिंक दे सकते हो, और ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना? सो दैट योर वेबसाइट शुड गेट अ क्रेडिबिलिटी कि हाँ सोशल मीडिया प्रेजेंस है या नहीं. तो यू कैन क्लिक ऑन द URL, यू कैन से द लिंक, क्या क्या लिंक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. यू कैन ऐड आइटम्स, यू कैन सी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर. लेट्स सपोज ये देखो वर्डप्रेस, व्हाट्सएप है, ठीक है? क्या मेरे पास यहाँ पे पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट भी है, क्या यहाँ पर स्नैपचैट है, स्नैपचैट भी है, सारे ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है? सो यू कैन यूज द सोशल मीडिया आइकन वाला थिंग. देन द नेक्स्ट इज alert. Let's say alert is, what is alert? So this is an alert. So let's suppose success. I'll say click me or maybe attention. तो I want to show the alert कि अलग से मुझे कोई पार्ट दिखाना है
कि यार अलर्ट या मे बी अटेंशन प्लीज, तो वो वाला पार्ट आप दिखा सकते हैं। और ये पूरी वेबसाइट से कुछ अलग ही दिखेगा। ये देखो, बाकी वेबसाइट का कलर कुछ ऐसा है व्हाइट और समथिंग, इसका कलर अलग ही दिखेगा। तो आप कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लेट्स सपोज टू रन अ स्पेसिफिक ऑफर, कि यार कोई स्पेसिफिक ऑफर दिखाना है, उसके लिए कर सकते हो। डिसमिस बटन आपको दिखा, जैसे यहाँ पे क्लिक करके वो डिसमिस कर सकता है कि ठीक है अलर्ट मैंने देख लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो दीज आर समथिंग व्हिच यू कैन डू। नाउ लेट्स ऐड वन अनदर टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन दिखते हैं फटाफट, अब खत्म ही होने वाले, ज्यादा इसके बाद है नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज अलर्ट साउंड क्लाउड। साउंड क्लाउड एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, साउंड क्लाउड एक व्हाट यू से म्यूजिक, ऑनलाइन म्यूजिक प्ले करने का है, तो उसका कंट्रोल आप यहाँ दे सकते हो। सो लेट्स सी कि मैंने यहाँ प्ले किया, सो यू कैन इंटीग्रेट दैट। साउंड क्लाउड की पूरी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज साउंड क्लाउड के बाद शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड का मतलब है यहाँ पर आप अपना शॉर्ट कोड, यानी कई बार क्या होगा कि कोई भी अपना स्लाइडर है या कुछ भी है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन नहीं आएगा। वहां पे क्या होगा, उसका अलग प्लगइन होगा, उस प्लगइन में जाके एक छोटा सा कोड मिलेगा आपको, उस कोड को यहाँ पेस्ट कर दो और वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो विल सी लेटर ऑन। ठीक है, बट ये समझ लो कि ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज HTML। सो अगर आपके पास एक कस्टम HTML का कोड है, सो यू कैन राइट इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में काम नहीं आता है, बहुत रेयर केस होता है कि HTML का कोड हम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन्यू एंकर। सो मेन्यू एंकर इज लाइक, यहां पर आई थिंक दिस, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमें आईडी डालनी पड़ेगी, अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो अभी अलग से अपन क्रिएट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट व्हेन वी विल यूज दैट। साइड बार मेन साइड बार, अगर आपको दिखाना है कि देखो साइड बार में कुछ दिखाना है इवेंट में या कुछ भी, तो यू कैन डू दैट। यहाँ पर पहले से बनाए हुए होने चाहिए आपके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके बनाओगे, पहले से बने हुए होने चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दिखेगा। तो मेन साइड बार ही हमारा एक बना हुआ है, वो इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो ये भी सिर्फ ज्यादा मेन पेज में यूज नहीं आएगा, ये ब्लॉग वाले में यूज आता है। रीड मोर इज कंटिन्यूसली रीडिंग। तो अगेन ये आपको सिर्फ हमें जो पेजेस हैं उनमें पहले बनाना पड़ेगा, उसका लिंक देना पड़ेगा। द लास्ट इज स्लाइडर रेवोल्यूशन 6। तो ये स्लाइडर के लिए, ठीक है, पर ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं होता है, स्लाइडर का ये अलग से आता है, वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसका शॉर्ट कोड डालेंगे और इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है तो आप देख लेना, अगर कोई नहीं आया होगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जो वर्डप्रेस मेटा, ये आपके काम के अभी नहीं है। वो कॉमर्स वाले अभी आपके काम के नहीं है, एंड ये वाले भी आपके काम के नहीं है। तो दीज वर अबाउट आई वुड यूज 40 विजिट्स जो अभी तक हमने सीखे। और कॉलम और विड्थ का जो कॉलम और व्हाट यू से रो का जो कॉन्सेप्ट है कि कितनी रोज अपन को लेनी है, कितने कॉलम अपन को लेने हैं, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, ठीक है, हाउ टू सेव इट। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी करो तो अपडेट का बटन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपका लैपटॉप बंद हो जाए या समहाउ आपका टैब बंद हो जाए, आपने बंद कर दिया या लैपटॉप क्रैश हो गया, तो ये पूरा का पूरा आपका जो वर्क है वो सेव नहीं होगा। देन यू हैव टू रीडू इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच। तो मेक श्योर कि जब भी छोटे से छोटा चेंज करो तो अपडेट कर दो, तो एटलीस्ट योर वर्क विल बी सेव। अगर अपडेट नहीं करोगे तो आपका वर्क सेव नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक ये आपको एलिमेंटर समझ में आया होगा, इसके कैसे कैसे करते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाने का ट्राई कर रहे हो या कर चुके हो, स्टार्ट कर चुके हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मंडे से या मंडे को आपको कुछ वीडियोस में दूंगा। अभी तक यार वो मेरी वीडियोस अपलोड हुई नहीं, पता नहीं क्या चक्कर आ रहा है उसमें, जब भी करता हूँ फेल्ड बता देता है। तो आई विल ट्राई कि मैं उनको कर दूं, और वो वीडियो ही आपको हेल्प करेंगी सारा वेबसाइट बनाने। ठीक है, थीम सेलेक्ट आपने करी रखी है, थीम के बेस पे आपको वीडियोस देखनी है, एंड देन यू हैव टू मेक इट। पूरा एक लेआउट बनाओ। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जो मैंने निकलवाई थी वो इसीलिए निकलवाई थी सो दैट यू कैन सी कि यार मुझे किस टाइप का एलिमेंट डालना है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट आई वांट टू पुट इट।
ठीक है, तो वो चीज करनी है। अब इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ। व्हाट्सएप बता दिया आई थिंक मैंने उसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन भी था। नहीं सर, ऐसा है कि व्हाट्सएप को मैं है ना साइट के कॉर्नर में ऐड करना चाहता हूँ, उस पर वो क्लिक अलग करते से हुए आता मेरे है, रिडायरेक्ट हो जाए। वो अलग और से हाँ, आता है, वो अलग से आता है। मैं बताऊं तुम क्या करना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो कुछ ये है, इसी की वेबसाइट पे भी है वो। हाँ, सब पे है और वो सर वो वो अलग वहीं से पे विजिट फिक्स लगाना है, पड़ता है। वो फिक्स रहे वहीं पर ही, हाँ मतलब हाँ, वो नीचे अलग से ऊपर विजिट करते हुए। प्लगइन आता है। ये देखो, जैसे हमने इस वेबसाइट में लेफ्ट साइड में लगा रखा है, ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा अब यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये चीज कर सकते हो, प्लगइन से होता है। वो प्लगइन आप इजीली करो, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, वो रिडायरेक्ट हो गया वहां पे। तो प्लगइन से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सएप लग सर जाएगा। सर और बोलो। कौन सी प्लग है सर वो? सर ये प्लगइन है आपका व्हाट्सएप चैट। मैं आपको एक बार सर्च करके दिखाता हूँ इसके अंदर, लेट मी शो यू। ठीक है, तो इसका सो इन ऑर्डर टू डू दैट यू विल गो टू प्लगइन्स। प्लगइन्स में जाके यू विल ऐड न्यू प्लगइन एंड इसके अंदर सॉरी जॉइन चैट का है वो, जॉइन चैट। तो यू विल सर्च जॉइन चैट। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, लाइव चैट, ये जॉइन चैट, सारे सबके ऑप्शंस आ गए। अब इसके अंदर जॉइन चैट में भी एक आता है व्हाट्सएप चैट स्पेसिफिकली। आपको सिर्फ व्हाट्सएप का लगाना है तो व्हाट्सएप का आप यूज कर सकते हो। देखो ये इतने सारे। सो आई थिंक ये देखो, फर्स्ट ये वाला जो है, फर्स्ट वाला ये आप कर सकते हो, इंस्टॉल नाउ, लेट्स सपोज इंस्टॉल नाउ। ठीक है, एंड इसमें आपको नंबर वगैरह देने पड़ेंगे व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए, कौन से व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट करना चाहते हो। सो इफ आई क्लिक ऑन एक्टिवेट, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा अंदर। यहाँ पे एलिमेंट्स में देखो कहाँ पर है, जॉइन चैट था, व्हाट्सएप वाला था, हाँ जॉइन चैट ही था। सेटिंग्स, सेटिंग्स में देखो हाइड्रोफोनिक्स पे नहीं लगा हुआ है ना अभी, हाँ नहीं लगा हुआ। ये नंबर आपसे पूछेगा कौन सा नंबर है, मैसेज क्या डालना है, ये व्हाट्सएप का आइकन कहाँ रखना है, ठीक है, क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, चैट विद अस, ये वगैरह वो वगैरह। लेट्स सपोज आई क्लिक ऑन सेव। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आई थिंक ये अब ऑप्शन मुझे राइट साइड में इस वेबसाइट पे कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। अच्छा, यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि सिर्फ मुझे मोबाइल पे दिखाना है या लैपटॉप पे दिखाना है। ठीक है, तो आई थिंक इस वेबसाइट में मैंने लैपटॉप पे हाइड कर रखा है। एक सेकेंड, तो इसके अंदर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में आई want to show this on all the pages. So where is the option for that? Left, right, select an image button only ना, इसको आंसर डीसेलेक्ट कर दो एंड सेव। तो जैसे इसको करोगे तो यू विल सी, ये देखो ये राइट साइड में बॉटम पे आ गया चैट वाला, दो आ गए इनफैक्ट, क्योंकि हमने दो प्लगइन यूज कर लिए। एक तो जॉइन चैट पहले से था, और जो अपना क्लिक टू चैट वाला था वो ये रहा, दिस इज क्लिक टू चैट। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, प्री फील्ड, ये सारी चीजें डाल। समझ में आया तो? यस सर, यस सर। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट? सर सर वो मेरी साइट नहीं खुल रही। अरे डाउट बोला, प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर। डाउट अभी लेक्चर से रिलेटेड डाउट बताओ। बाकी अब जो आई थिंक मेरे को लगता है जो डाउट नहीं पूछता है ना वो सुनता ही नहीं है। बोले ठीक है यार, अब सर ले लिया बीबीए, एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, घर वालों ने दिला दिया, क्या करें। हाँ सिद्धांत, वांट टू से समथिंग? Siddhant, you are not audible. If you want to say something, you are not audible. Sir, am I audible now? Yes. सर मैंने एक लाइक एनिमेटेड लोगो बनाया था, तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे? एनिमेटेड लोगो कैसे इंसर्ट करेंगे? सी
यहाँ पर when you will go into your WordPress now, so you will see appearance. In the appearance you will go customize. In the appearance you will go customize. ठीक है, एक्स्ट्रा थीम इसलिए मैंने बोला था कि जो जो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा थीम्स में ही आते हैं, दूसरी थीम होगी तो शायद ऑप्शन दूसरे तरीके से आएंगे. ठीक है, सो नाउ नो सर, सॉरी एक्स्ट्रा ही है मेरे में भी. हाँ ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कस्टमाइज में आने के बाद क्लिक ऑन ग्लोबल, नॉट ग्लोबल, लेट मी, यस, क्लिक ऑन दी हेडर. हेडर में यू विल सी दी साइट आइडेंटिटी. साइट आइडेंटिटी, हियर यू विल सी दी ऑप्शन ऑफ साइट लोगो. तो आपको जो भी आपने लोगो लिया है उसको चेंज, अभी तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, चेंज लोगो करके पहले तो उसको मीडिया में अपलोड कर दो अपने वर्डप्रेस में एंड सेलेक्ट इट एंड दैट लोगो विल बी शोन हियर. वो लोगो यहाँ पे आ जाए. तो समझ में आया सिद्धांत क्या बताया मैंने? यस सर. हाँ, तो ये करके देख लो, नहीं हो तो मुझे बताओ कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आई विल रिजॉल्व दैट. बाकी और बोलो, लेक्चर से रिलेटेड और कुछ पूछना है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही तो? Sir, if we want to add on video, animated video. तो वीडियो का तो लिंक मैंने बता रखा है ना, वो चाहे एनिमेटेड हो चाहे नॉर्मल हो. अगर आपको एनिमेटेड करना है या नॉर्मल वाला करना है तो लिंक डिटेल थिंग विल बी सेम. बाकी लोग किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब, तो यू विल नॉट नीड माय हेल्प इन ऑर्डर टू क्रिएट योर वेबसाइट. इसका मतलब तो ये है, फिर तो बढ़िया यार, मेरा काम कम हो रहा है और क्या. जो डाउट नहीं पूछ रहा है, जो टीम डाउट नहीं पूछ रही है, तो मतलब दे आर एक्सपर्ट इन इट. या फिर सैटरडे है इसलिए बोले सर क्यों थका रहे हो, अभी तो सेशंस भी हैं इतने सारे, वो भी करने हैं. चलो, तो अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस तो डाल दो, ये तो कर दोगे. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है सर, वरना घर चली जाएगी अटेंडेंस, बोले घर बैठे बैठे भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रही. प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है. तो क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड. ये वीडियो अभी आपको थोड़ी देर बाद लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, सो यू कैन यूज दैट टू सी एलिमेंट्स. जितने अब जो बाकी वो डाउट था अपार्ट फ्रॉम लेक्चर, वो रुक जाओ, बाकी जिनको नहीं है दे कैन गो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन सैटरडे.